Hmm, true saying, Janardhan. But we can't rule out one brighter thing of these African countries regarding this business, as they are all covered with seashores. And it is always safe to have that route for this kind of shady business, Janardhan. You can definitely won't depend on any road or rail network. Forget about air route also. And hence, for bigger quantities, this seashore route would be always safer for our businesses. Their naval authorities are so corrupt in nature that we can do our bids at any time. It is a very huge advantage, Janardhan, and we shall not miss that one at any cost. As even you know how critical it is to manage transport activities by protecting our cartels from the hands of authorities. So it became a good place to join our hands in proper ways. Janardhan, even our South American contacts do have changing hands with those gangs in these businesses. तो भाई एक बना बनाया नेटवर्क हमें मिल रहा है जिसमें हमें पहले से ही एक बेस तैयार मिल चुका है। हमें बस उसे आगे बढ़ाना होगा और देखना होगा कि कहाँ तक ये सब जा सकता है। They can also offer the services of making dummy passports on various names for us, that too for their own respective countries. So with money changing hands so fast, we can obtain those passports against any small kind of deal to get it done. We don't have to put extra money over it, as any small kind of deal money would take care of all this in huge way. And once we have all those passports of those countries, that too with so many different names, then Janardhan, not even any red corner notice would do any damage on our journey part. It is essential, Janardhan, very essential to think about it, as when we do reach to our fugitive status in coming future, this thing would save us in big time. प्लस देर आर सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पर क्रिमिनल के हैंड ओवर का कोई कानून नहीं बना है हमारे कंट्री के साथ। सो दिस इज़ अदर एडवांटेज दैट वी हैव ओवर यूरोपियन और साउथ एशियन कंट्रीज जनार्दन। सो मच टू थिंक ऑन दिस पार्ट एंड सो मच टू डू व्हेन इट कम्स टू आवर बिजनेस वेंचर्स। येस, वी कैन हैव मोमेंटरी ट्रबल्स इन इट, but as there are no strict laws of authorities in it, then we can anyways take huge advantage of it to make our businesses prosper. There is no one to stop us in those things. Further, we can anyways escape from there if any last minute kind of severe trouble occurs at crunch moment. There are a lot of routes and options to escape from our location, Janardhan. सही कह रहे हो तुम जयवंत, दम तो है बात में। लेट्स सी हाउ इट गोज़। फर्स्टली वी वांट टू मिंट मनी एज प्रॉफिट फ्रॉम आवर साउथ अमेरिकन बिजनेसेस टू सी हाउ इट गोज़ अहेड। इफ इट इज़ ऑल फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल, then only we shall look ahead to see what and how we can manage all this, जयवंत। फिर अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होता है तो फिर ये सेवक जी के उस 10 एकर्स प्लॉट वाले बिजनेसों के लिए हमें एडिया रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल धंधा होगा हमारा बाहर का। शायद ऐसा भी हो कि हम एक वक्त के बाद सीधा वहीं बाहर जाकर सेटल हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ ना जयवंत, तो अय्याशी की कसम, मैं तो जाते जाते हमारे सभी इन्वेस्टरों का पैसा वहाँ बाहर ट्रांसफ़र करा के उनको एकदम कंगाल बना कर जाऊँगा। हमें हमारे वहाँ के एसेट्स भी वक्त आने पर बेचने होंगे ताकि कोई सबूत या निशान पीछे छोड़ा ना जाए। हाँ, एक बात और, इन बातों के ज़रिए मुझे ये चीज़ याद आई जयवंत कि वक्त रहते यहाँ के तुम्हारे एसेट्स एक एक करके तुम्हें अंजाम तक पहुँचाने होंगे, और उससे जो पैसा बनेगा तुम्हारा वो बाहर के अकाउंट्स में बीच बीच में जमा करते रहो। हमें जितनी चीज़ों की आगे चल के यहाँ ज़रूरत होगी सिर्फ उतनी ही चीज़ें हमें रखनी होंगी और बाकी सब बेचकर उसे पैसों में कन्वर्ट कराना होगा ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए।
और ये काम बहुत सावधान होकर करना होगा हमें, समझे? क्योंकि अगर किसी को इसकी ज़रा भी भनक लगी ना जयवंत, तो हमारे सभी अरमान पूरे ना हो पाएंगे। इसलिए हमें चुपचाप से बिना किसी को पता चले ये काम करने होंगे। यस जनार्दन, एब्सोल्युटली राइट बडी। We need to keep each and every step with utmost secrecy and with all alertness. It is not feasible for us from henceforth to roam with all freedom and to spread a lot of clues of us when it comes to these shady businesses. Like for example, take that 10 acres ACCS project case. We failed at it miserably, even after putting a lot of hard work and brain at it. And yes, that business proposal is gone by now, but we have left the proof of our greediness in front of all attendees in that meeting. So it is like spreading a clue which can haunt us in big ways, Janardhan. Anyways, we need to remain alert from henceforth. ट्रू वर्ड जनार्दन। और हाँ, अब बोर करना छोड़ दो मुझे। वैसे भी मैं अब भी उन 15 दिनों के अय्याशी के हैंगओवर में हूँ जिसे तुम अब बिगाड़ रहे हो जयवंत। अब वक्त है हम हमारे कामों में बिजी रहें और उन 15 दिनों को याद करके उन मौज मस्ती के पलों का आनंद लें। ये बार बार नहीं आएंगे हमारे लाइफ में जयवंत। अगर शाम को तुम फ्री हो तो आ जाओ, फिर उस इटली से आए शैम्पेन का मज़ा लेते हैं। और अपना फैबियो तो है ही अच्छे अच्छे डिलीशियस नॉन वेज आइटम्स खिलाने के लिए। वक्त हो तो आ जाओ शाम को। हमें हमारे बिजनेस के आगे के कामों के बारे में भी तो सोचना है। शायद शाम को हमें हमारे ब्राज़ीलियन कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके आगे की डील के बारे में सब जानना होगा और उस हिसाब से आगे के कदम हमें रखने होंगे जनार्दन। काम जितना जल्दी जल्दी आगे बढ़े उतना हम दोनों के लिए अच्छा हो। ये जहर का बिजनेस सच में एक कमाल है जनार्दन। देता तो वो एक नशा है सामने वाले को, लेकिन इससे मिलने वाले पैसों का जो नशा है उसकी तो बात ही कुछ और है जनार्दन। और हमें ये चीज़ अब नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। कितने सारे बिजनेसेस किए हमने, कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी ज़िल्लतें उठाई, लेकिन इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ जितना इस जहर के बिजनेस में है जनार्दन। एनीवेज, तुम आ जाओ शाम को, हमें और भी कुछ बातें करनी है आगे के बारे में। और एक बात समझ लो भाई, आगे जाकर कुछ भी हो हम दोनों को एक साथ ही रहना होगा, समझे? किसी भी हाल में। इसलिए वक्त हो तुम्हें शाम को तो आ जाओ। हमें बाकी की चीज़ों पर भी बहुत गहराई से सोचना होगा जनार्दन। हाँ जयवंत, सही कहा तुमने। चलो शाम को मिलते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। बाय फॉर नाउ।
अवधूत, कहाँ थे इतना वक्त? बहुत देर से आए आज भी। इतने दिनों से देख रही हूँ मैं। आजकल तो तुम 2-3 घंटे लेट ही आ जाते हो। मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आगे शुरू होने वाले हैं, तो तुम्हें ज़्यादा समय देना होगा पढ़ाई में। अरे मॉम, पढ़ाई तो कर रहा था मैं। कॉलेज और प्रैक्टिकल्स के बाद लाइब्रेरी में जो बैठना होता है, सभी बैचमेट्स और सीनियर्स की हेल्प लेकर एग्ज़ाम्स में क्या क्या आ सकता है ये सोचकर पढ़ाई करनी पड़ती है ना मॉम। इसलिए आजकल देरी होती है घर आने में। घर बैठे बैठे तो सिर्फ एक सोच के साथ पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन अगर सबके आइडियाज़ समझकर क्या क्या आ सकता है ये सोचकर पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और है मॉम। अगर कुछ क्वेरीज हो तो सामने सामने क्लियर करा सकते हैं हम सब। बस यही सब सोचकर आजकल लाइब्रेरी में पढ़ाई करते रहते हैं हम सब, इसलिए लेट होता हूँ मैं। हाँ हाँ, सभी पढ़ाई क्या एक हफ्ते में ही कर लोगे? अरे अवधूत, ज़रा अपने खाने पीने पर भी तो ध्यान दिया करो। एग्ज़ाम टाइम में ये खाना पीना सही ढंग से कर लेना चाहिए, वरना बीमार पड़ सकते हो तुम। वैसे लाइब्रेरी के बाद या फिर उससे पहले कुछ खा पी लेते हो कि नहीं? हाँ हाँ मॉम, आप भी ना। अगर इतना वक्त पढ़ाई में लगा रहा हूँ सबके साथ, तो खाना पीना होता ही है वक्त पर। कैंटीन जो है पास में। तुम मेरी फिक्र छोड़ो मॉम, मुझे तो बस मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में इस बार बहुत ज़ोर लगाकर पढ़ाई करनी है, ताकि कुछ ज़्यादा मार्क्स मिले इस बार। डैड को देखता हूँ मैं हर बार, हमेशा वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स निकालने के लिए दूसरों को अवार्ड देते हैं मॉम। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनके मन में ये बात ज़रूर छुपी है कि किसी दिन मैं उस अवार्ड को ले लूँ उनके हाथों से, वो भी सबके सामने अवार्ड सेलिब्रेशन के वक्त। मुझे पता है कि डैड मुझसे ये सब शेयर नहीं करेंगे, ताकि मुझे अंदर से दुख ना पहुँचे। इस बार तो मैं अवार्ड मिलने के करीब भी था, बल्कि बहुत करीब था। भले ही पढ़ाई के लिए नहीं तो एटलीस्ट 8 ओवर्स कप के मेरे परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन थोड़े से मार्जिन से हमारा वो फास्ट बॉलर मुझसे इस बात में जीत गया मॉम। मैं देख रहा था उस वक्त स्टेज पर बैठे बैठे डैड की नज़र मुझे ढूंढ रही थी कि ये अवार्ड मुझे मिले, लेकिन फाइनली वो किसी और को मिला मॉम। आई नो डैड उनके दुख, उनकी अपेक्षाएं मुझे कभी नहीं बताएंगे, ताकि मुझे अंदर से दुख ना पहुँचे। लेकिन मुझे ये भी पता है मॉम कि उनके मन में आज भी वो इच्छा है कि कभी तो वो दिन आए और मुझे एससीसीएस में किसी काम के लिए अवार्ड मिले, शायद उन्हीं के हाथों से मॉम। और मैं ये बात जानता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिमाग पढ़ाई वाला तो नहीं है। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो सिर्फ एक एवरेज परसेंटेज ला सकता है, जिसे कोई अवार्ड नहीं मिल सकता। यही सब सोचकर मैंने ठाना है कि अब से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने मार्क्स का रेंज बढ़ाते जाऊंगा और पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाऊंगा। इससे मुझे अवार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन डैड को एक खुशी तो ज़रूर मिलेगी, जो देखने में मुझे बहुत खुशी होगी मॉम। बस इसलिए ये सब चल रहा है इन दिनों। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ हाँ अवधूत, मैं भी ये बात जानती हूँ कि तुम हम दोनों के लिए कितना सोचते हो। तुम्हारे डैड एक प्रिंसिपल होके भी तुम्हें एक अपने दायरे से बाहर जाकर मदद नहीं करते कभी, ताकि तुम्हें शॉर्टकट की आदत लग कर तुम कहीं बिगड़ ना जाओ। इसलिए वो तुम्हें उस मदद ना करने के बदले में तुम्हें बहुत सारी आज़ादी दे चुके हैं, ताकि तुम अपने आप को पहचान कर किसी और फील्ड में अपना नाम कमाओ। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती जीवन में। हमारे दिमाग, हमारे नेचर, हमारी पसंद को जो चीज़ सम्मान दे सके, उस चीज़ में हमें हमारा फील्ड चुन लेना चाहिए अवधूत। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंसान के लिए। पढ़ाई तो एक प्रमाण होता है आदमी के दिमाग की काबिलियत जानने का, लेकिन अवधूत, ये सब चीज़ें ही एक सच हो, ये भी तो कोई बात नहीं होती कभी। इसलिए पढ़ाई में अगर तुम्हारा मन ना भी लगे ना, तो भी निराश ना होना।
जिंदगी एक अथांग सागर है बेटे। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिल पाएगा अगर तुम खुद को जानकर, पहचान कर इसमें से अपने लिए कुछ चुन सको और उसी के साथ अपने जीवन में ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो तो तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अरे ये देखो, मैं भी कहाँ तुम्हारे साथ बातों में उलझ कर रह गई। इतनी देर से थक हार कर तुम घर आए हो और तुम्हें अब तक चाय नाश्ता भी नहीं पूछा मैंने। मैं भी कैसी माँ हूँ। ठहरो तुम अवधूत, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ मैं। ठहरो, तब तक तुम फ्रेश होकर रिलैक्स हो जाओ। अरे नहीं मॉम, इतनी भागदौड़ मत करो। मैं कैंटीन से खाकर आया हूँ अभी अभी। लगातार 3-4 घंटे बैठे थे हम पढ़ाई के लिए और बाद में सब खत्म होने के बाद कैंटीन में चले गए। मुझे अभी भूख नहीं है मॉम। तुम डायरेक्ट अब डिनर के वक्त मुझे बुलाना। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर लेता हूँ तब तक, ताकि रात भर जागने की नौबत ना आए और एक अच्छी नींद मिले पूरे दिन की भागदौड़ से। वैसे मॉम, डैड नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ अवधूत, वो बाहर मीटिंग में बिजी हैं। आजकल तो कॉलेज के मैटर्स के लिए वो प्रताप अंकल के साथ बाहर मीटिंग में जाते रहते हैं। कैंपस में उनके केबिन में भी तो बहुत सारे मीटिंग के कामों का माहौल चल रहा है आजकल। तुम तो ये सब जानते ही होंगे अवधूत। इसलिए आजकल हफ्ते में 2-3 बार तो लेट होते ही हैं तुम्हारे डैड। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े एसीसीएस कैंपस के प्रिंसिपल जो है तुम्हारे डैड, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां तो संभालनी ही पड़ेंगी उन्हें। इसलिए वो बिजी है आजकल इस सब में। ओह, तो वो अभी तक नहीं आए? कॉलेज में भी नहीं आए वापस जब मैं वहाँ से इधर आ रहा था मॉम। तुमने सही कहा, आजकल बहुत बिजी होते हैं वो। कैंपस में भी उनके केबिन में वो बिजी रहते हैं सारा वक्त, कभी कामों में तो कभी मीटिंग्स में। बहुत सारे टेढ़े मामलों को सुलझाना पड़ता है, इसलिए उनको उतना वक्त देना ही पड़ता है ना मॉम। इसलिए डैड बिजी होते हैं हमेशा। लेकिन अब ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए हैं मॉम डैड की कैंपस में सरप्राइज विजिट करते हुए। हर कोई उन्हें मिस कर रहा है आजकल। एक वक्त में वो और प्रताप अंकल कभी कभी एक साथ या फिर अलग अलग एक सरप्राइज विजिट कर ही लेते थे कैंपस में, ताकि क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं ये सब देखने के लिए। कुछ बुरा हो रहा हो तो वो सीधा हो जाता था, और जो उन्हें अच्छा दिख जाता, कोई स्टूडेंट कुछ अच्छा काम करते हुए, तो वो उन्हें बहुत पसंद आता था और वो ऐसे स्टूडेंट्स को याद भी रखा करते थे मॉम। लेकिन आजकल तो ये सब कहीं गुम हो चुका है मॉम। एवरीवन इज़ मिसिंग माई डैड बिग टाइम। हाँ क्यों नहीं अवधूत, आखिर सबके प्यारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो कैंपस के, वो अगर तुम सबको इतना प्यार देते हैं तो लाजमी है कि वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते होंगे। और वैसे भी तुम्हारे डैड जैसा आदमी बहुत ही कम मिलेगा ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन को अवधूत। उनकी सोच हमेशा सबके फ़ायदे के लिए होती है।